Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. In the previous video, today date is 22nd June 2021 and I am teaching you chapter 4. So, the name of the chapter is Plants, Our Green Friends. So student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video we have completed chapter number 3, book exercises and question answer of the chapter. So today I will start a new chapter and name of the chapter is Plants, Our Green Friends. Okay. Now take out your book and take one copy with you when you are watching the video. If you are unable to understand anything, then you can note down that thing and ask me in the online class, and even in that rough copy you can also note down the important points from the board. Okay, so plants, our green friends. What is the, first of all student, let's try to understand what is the importance of plant in our life. Why plants are very important for us? That is importance of plants in our because as you know, the name of the chapter is Plants, Our Green Friends. So first of all student, let's understand what is the importance of plants in our life. When we are talking about the living things student, when we are talking about the living things, then it is divided into three parts: plants, human beings, and animals. Okay, so let's understand what is the importance of plants in our life. So student, when we are talking about the living things, so they are divided into three groups or three category, you can say. That is plants, human beings, and animals. Plant, human being, and animals are the living things present on our planet, that is earth. So see, both human beings and animals, we are totally depend upon plant. How? That is the reason plant are our green friends, because our living gas is oxygen. ठीक है, our living gas is oxygen, that is of human beings also and of animals also. Our living gas is oxygen, and from where we are getting this oxygen? We get oxygen from plants. From where you are getting oxygen? We get oxygen from plants. That is the reason plants are very important
for us. For example, human beings and animals, our living gas is oxygen, and we get oxygen from plants. Then what is the next importance? Next is, देर आर मैनी इंपॉर्टेंट, बट हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तब तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होंगे ही नहीं. ठीक है, तब तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होंगे ही नहीं. ठीक है, तो एक तो हो गया वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इज आवर लिविंग गैस. इज इट क्लियर? विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज नॉट पॉसिबल. Life is not possible without the oxygen. Another thing is that out of these three, plants, human beings and animals, plants are producers. Plants are producers. What does producer means? Producers, plants prepare their own food. Is it clear? So out of these three living things, that is plants, human being and animals, plants are the only producer on this planet. How? Because plant prepare their own food, and human beings and animals, we depend on plant for our food. Is it clear? Human beings and animals depend on plants for their food. Is it clear? So what I explained you, I repeat it so that you are able to understand. Okay, as you know, the name of the chapter is plants, our green friends. How they are our friends? Importance of plants in our life. So when we are talking about the living things, is it clear? When we are talking about the living things, then it is divided into three groups: plants, human beings and animals. Okay, now see how we are depend on plants. We get oxygen from plants, so our living gas is oxygen, and this oxygen gas we are getting from the plants. So we are totally depend upon plants for our life. Life is only possible and due to plants, and if there is no plant, then there is no oxygen gas, and then no human beings and animals present on this planet. So we get oxygen from plant. This is the first point. Second, out of these three living things, that is plants, human beings and animals, इन तीनों लिविंग थिंग्स में ओनली प्लांट्स आर प्रोड्यूसर. प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. इनमें से प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना भोजन बना सकते हैं. और ह्यूमन बींग्स और एनिमल डिपेंड हैं. देखो हमारी बॉडी, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था ना, आवर बॉडी इज अ वंडरफुल लिविंग मशीन. लिविंग मशीन है क्योंकि हमारी ग्रोथ होती है, हम फूड भी ईट करते हैं. इज इट क्लियर? सो वी आल्सो नीड एनर्जी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन आवर डे टू डे लाइफ. हमें भी एनर्जी की जरूरत है. हम भी खाना खाएंगे तभी हमारे अंदर एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, हम कोई काम कर सकते हैं. सो दिस फूड वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स. इज इट क्लियर? ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. हम लोग
प्लांट्स पे टोटली डिपेंड है। इज इट क्लियर? तो प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, और ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स क्या है? कंज्यूमर्स, क्योंकि प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है और हम उससे फूड हमें मिल रहा है। तो दैट इज द रीजन plants are our green friends. So in this chapter we will do detailed discussion about the plants. ठीक है, इस चैप्टर में अब प्लांट्स के पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे कि प्लांट्स क्या होता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स क्या होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन है। सो ऑल अबाउट प्लांट्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। I hope up to this you is clear to all of you. Okay, now next thing, plants are also called the lungs of the planet. Plants are also called lungs of the planet. ठीक है, प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ ए प्लेनेट, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग्स it is divided into three group, that is plant, human beings and animals. Okay, so our living gas, that is oxygen, and without oxygen life is possible? So answer is no. So answer is no. That is the reason plants are also called the lungs of the planet. ठीक है, और lungs क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जिससे हम लोग ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स हम लोग सांस लेते हैं ना। सो ये एक ऑर्गन का नाम है, ठीक है, इसीलिए प्लांट्स को आर आल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। नाउ सी स्टूडेंट, व्हेन यू सी इन योर सराउंडिंग्स देन यू विल सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू। ठीक है, जब आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो तो आपको बहुत टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, बहुत टाइप्स के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर? सो what you will observe, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? in your surrounding you see many types of plants. Is the size of all the plant is same? So answer is no. So we observe that there are many kinds of plants in our surrounding of, but there is a different in their shape and size. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? बहुत से प्लांट्स हैं हमारे सराउंडिंग में, लेकिन उनके शेप और साइज क्या है? डिफर है। ठीक है, उनके रूट और स्टेम सिस्टम में भी डिफरेंस है। ठीक है, कुछ रूट्स एंड स्टेम जब आगे बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूट और स्टेम, सर ने ये वर्ड क्यों यूज किया। बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, और कुछ आप ऐसे प्लांट देखते होंगे जिनकी स्टेम जो होती है बहुत हार्ड होती है। तो हमें अपने सराउंडिंग में डिफरेंट शेप और साइज के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और उनके रूट सिस्टम में भी, उनके रूट्स भी अलग अलग तरीके के हैं और उनके स्टेम्स भी। सो इन सबके बेस पे हमने प्लांट्स को, जब टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन की, प्लांट्स को डिवाइड किया, तो then it is divided into 5 groups. So किसके, on the basis of which we have divide the plants, shape and size, roots and stem, किस बेस पे हम लोग ने प्लांट्स के 5 ग्रुप्स बना दिए? ड्यू टू देयर शेप एंड साइज एंड देयर स्टेम एंड रूट्स। उनके स्टेम और रूट्स को देख के और उनके शेप और साइज को देख के हमने प्लांट्स के 5 ग्रुप्स बना दिए। इज इट क्लियर?
हमने क्या किए, 5 ग्रुप्स बना दिए प्लांट्स के। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हर्ब्स, shrubs, climbers, creeper, सो मैंने क्या बोला आप लोगों से, ठीक है, हमने प्लांट्स के शेप शेप डिफरेंस इन shape, size, stem, root, ठीक है। सो वी हैव ऑब्जर्व मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स, हमने बहुत तरह के प्लांट ऑब्जर्व किए अपने सराउंडिंग पे। सो अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, ठीक है, उनके शेप, साइज, स्टेम और रूट के बेस पे हमने इनके 5 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड व्हाट इज द रीजन क्या था, शेप, साइज, स्टेम एंड रूट। इसके बेस पे हमने इनके 5 पार्ट्स में प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, shrubs, climbers, creepers and tree. Is it clear? Now one by one I will explain you all these different types of a plants. Okay, now one by one I will explain you the different types of plants. Now let's start with the tree. फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रीज। ओके, बिफोर स्टार्टिंग ठीक है, ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पहले प्लांट्स के पार्ट को समझ लो, क्योंकि अभी स्टेम वर्ड यूज होगा, थिक वर्ड यूज हो, स्टेम इज थिक, लीव्स वर्ड आएगा, ब्रांचेस वर्ड आएगा, तो सबसे पहले आप ये समझ लो पार्ट ऑफ द प्लांट्स।
Now, first of all, understand what are the different part of a plants. So, student, I draw one line. Okay, what does it line show? Below the line, you see root. So, root is that part of the plant which is below the ground. The roots are in the soil. ठीक है, रूट प्लांट का वो पार्ट है बेटा जो ग्राउंड के नीचे होता है. मतलब रूट्स कहाँ होती हैं? रूट्स होती हैं सॉइल में. रूट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल. एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड, ये देखो अबव द ग्राउंड है, ये पार्ट आप देख सकते हो. ठीक है, तो प्लांट्स की आप बात करोगे तो इसके दो सिस्टम्स होते हैं, रूट एंड शूट. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे है, इसलिए मैंने लाइन मीन्स ये ग्राउंड है और रूट्स उसके सॉइल में है. और लाइन के अबव क्या है, जो पार्ट है पूरा प्लांट्स का, इसको हम लोग बोलेंगे शूट सिस्टम. ठीक है, क्योंकि प्लांट दो पार्ट में डिवाइड होता है. इज इट क्लियर? प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. तो रूट कहाँ होती है? सॉइल में. दैट इज द रीजन इनको अलग अलग दिखाने के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी. लाइन के बिलो मतलब ये सॉइल वाला पोर्शन है जिसमें क्या है, रूट है. एंड अबव द लाइन दिस इज योर शूट सिस्टम. अब नाउ सी, लेट सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. दिस इज व्हाट? दिस इज फ्लावर. Okay, what is this? This is bird. Bird means डायरेक्ट फ्लावर नहीं आते हैं प्लांट्स में, पहले छोटी छोटी कलियां आती हैं. ठीक है, फिर स्लोली स्लोली वो सेपल ओपन होने लगता है और उसमें से पेटल्स बाहर आ जाते हैं. आपने फ्लावर के नीचे से फ्लावर को देखोगे तो ग्रीन कलर का पूरा जो होता है वो सेपल होता है. वो जब ओपन होता है तो उसमें से पेटल्स आते हैं, फ्लावर आता है. ठीक है, तो ये बर्ड्स मीन्स कली होती है. ठीक है, व्हाट इज दिस? दीज आर नोन एज ब्रांचेस. ब्रांचेस मीन्स हिंदी में आप समझ लो पेड़ों की टहनियां. टहनियां होती है ना पेड़ों की, और उसी में पत्ते लगे होते हैं, तो दैट इज नोन एज ब्रांचेस. इज इट क्लियर? सो दीज आर नोन एज ब्रांचेस. ये जो है जिसमें आपके लीव्स लगे हैं, ये क्या हो गई? आपकी ब्रांचेस. व्हाट इज दिस? दिस इज द लीव. ठीक है, ये लीव्स हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रूट. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज स्टेम. ठीक है, दिस इज नोन एज स्टेम. ओके, दिस इज अ फ्लावर. बर्ड, दिस इज बर्ड. दिस इज लीव. दिस इज ब्रांचेस फ्रॉम विच द ब्रांचेस से क्या अटैच आपने देखा? लीव्स अटैच हैं. ठीक है, दिस इज लीव, these are branches, this is a fruit, and this is stem, and this is root. So I told you that the plant have two system, root and shoot system. So this part is known as, this part is known as root system. This part is known as root system, and here this part, okay, this is known as shoot system. I hope this picture is clear to all of you. One time more I revise it for you. See, these are the part of the plant. Below the ground, or you can say in the soil, what you will find? The root of a plant. And above the ground, the portion which you are able to see with your eyes, that is, this is the part of a plant. And what are the part of a plant? That is flower. This is known as flower. This is bird, leaf. These are branches. With the branches, the leaves are attached to the branches. After that, this is the fruit of the plant,
एंड दिस पोर्शन स्टेम, स्टेम से देखो दिस पोर्शन इज नोन एज स्टेम, स्टेम से आपकी ब्रांच अटैच है, लीव्स अटैच हैं, फ्रूट अटैच है, बर्ड्स अटैच हैं, फ्लावर अटैच है, सो ऑल आर अटैच विद द स्टेम, ये सारे सारे किससे अटैच हैं, स्टेम से अटैच हैं। तो ऑल दीज पार्ट्स आर नोन एज शूट सिस्टम, दिस पार्ट इज नोन एज shoot system, and here you have only root which are in the soil, so this is known as root system। क्योंकि सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ प्लांट पता होने चाहिए, तब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो व्हाट इज द कॉमन थिंग, हमने पेड़ को उसके साइज पे, उसके स्टेम के और रूट के बेस पे उसके 5 डिफरेंट टाइप्स बना दिए, ठीक है। ड्यू टू द साइज ऑफ द प्लांट, देयर रूट एंड स्टेम, वी डिवाइड द प्लांट इनटू 5 टाइप्स। अगर आपसे बोले कि कॉमन क्या होता है इन ऑल द ट्री, व्हाट इन ऑल द प्लांट्स, इन ऑल प्लांट्स what is common, इन ऑल प्लांट व्हाट इज कॉमन, मतलब अब यहाँ कहने का मतलब है कि ये नहीं कि प्लांट बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा, कैसा भी प्लांट है, क्योंकि उसके हमने 5 टाइप्स बनाए हैं। तो क्या कॉमन है उनमें, कॉमन ये है कि उन सब में यही पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स कॉमन है। अगर स्मॉल प्लांट होगा उसमें भी लीव होती है, उसमें भी ब्रांचेस होते हैं, उसमें भी स्टेम होती है, उसमें भी रूट होती है, ठीक है, उसमें भी फ्लावर आएगा, बर्ड्स आएंगी, फ्रूट आएगा। तो दैट इज द कॉमन थिंग, दैट द बॉडी पार्ट्स आर सेम। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि प्लांट्स के हमने 5 टाइप्स बना दिए, उसके साइज के बेस पे, उसके स्टेम को देख के और उसके रूट्स को देख के। लेकिन भले पेड़ बड़े हो छोटे हो कैसे भी हो, 5 टाइप्स है प्लांट्स के, 5 ग्रुप बना दिए। बट व्हाट इज द कॉमन इन ऑल द प्लांट्स, सारे प्लांट्स में क्या बात ऐसी है जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है इन ऑल प्लांट, व्हाट इज कॉमन, देयर बॉडी पार्ट्स, देयर बॉडी पार्ट्स, सबके जो बॉडी प्लांट्स के जो चाहे बड़ा पेड़ हो छोटा हो, सबके जो पार्ट्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे सब में स्टेम होगा, फ्रूट है, ब्रांचेस है, लीव्स है, बर्ड है, फ्लावर है, रूट है, दैट इज द कॉमन, दैट इज द कॉमन बिटवीन ऑल द प्लांट्स। आ गया समझ में, तो ये चीज क्या है, दिस इज द कॉमन थिंग बिटवीन ऑल द प्लांट्स, सब प्लांट्स में दिस इज अ, जैसे ह्यूमन बॉडी है, कुछ लोग बहुत टॉल होते हैं, कुछ एवरेज हाइट होते हैं, कुछ शॉर्ट हाइट होते हैं, तो क्या कॉमन होता है, सबके बॉडी पार्ट्स कॉमन होते हैं। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि कोई बहुत हाइट वाला है, कोई एवरेज हाइट वाला है, किसी की हाइट बहुत कम है, लेकिन क्या कॉमन होते हैं, सब में बॉडी पार्ट्स क्या कॉमन ही होंगे। एक बहुत बड़ा आदमी है तो उसके पास भी हेड होगा, स्कल होगा, एक बहुत छोटा आदमी है तो उसके पास भी स्कल होगा, उसके पास भी हैंड्स होंगे। सो डैट क्या कॉमन क्या है, बॉडी पार्ट्स क्या है, कॉमन है। इसी तरह प्लांट्स के जितने भी बॉडी पार्ट, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या कॉमन है, वेदर द प्लांट इज टॉल और वेदर द प्लांट इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ओके स्टूडेंट, so these are the parts of the plant. Thank you student.